Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. Today's video is a paragraph on Millet Man of India, or you can say about the millets. So I will just read it for you. The year 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millet, following a proposal by India which wants to position itself as a global hub of millets. Millets are a collective group of small seeded annual grasses that are grown as grain crops primarily on marginal land in dry areas of temperature subtropical and tropical regions. तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने सिर्फ से बता दिया कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और इसके बाद हमने मिलेट्स क्या होते हैं वो बता दिया. देन मिलेट्स अब थोड़ा सा इनका हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताते हैं. मिलेट्स वर अमंग द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स. मिलेट्स आर द ट्रेडिशनल ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. There is even evidence of the consumption of millet in the Indus Valley civilization. Presently, millets are grown in more than 130 countries and consumed as a traditional food. India is the largest producer of millets in the world and Rajasthan is the highest producing state in India. आजकल ये ना बच्चों को बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क भी मिल रहा है मिलेट्स के ऊपर लिखने के लिए. सो दिस विल बी ऑफ हेल्प फॉर यू. आप इसके ऊपर से पढ़ के इसको लिख सकते हो. फिर आप बताओ मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स वर अर्लियर रेफर्ड टू एज coarse cereals or the cereals of the poor. The Union government renamed these as nutri cereals owing to their high nutritional value. इसलिए nutri cereals बोला गया. Millets are called super grains and are the most beneficial for health since they are gluten free and are good for digestive system as well as protects us from heart diseases. इसके फ़ायदे बता दिए. इनको पहले क्या बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, अब हमने ये बता दिया. सारा मिलेट्स के फ़ायदे बता दिए. अब हम बताते हैं इनका मिलेट मैन के बारे में. If you think millets are getting due recognition only now, one has to thank the efforts of Indian farmers and those driving the emphasis on these cereals, such as Dr. Khadar Wali, popularly known as the Millet Man of India. A Padma Shri recipient, Dr. Wali is a native of Andhra Pradesh, who is now settled in Mysuru. Engaged in reviving millet for over 20 years. Now, Dr. Khadar Wali believes that they were part of the mainstream diet for long, but they were sabotaged in the last 75 years, kinse by corporates that marked rice and wheat, which he dubs as disease-causing negative grains. ये क्या बोलते थे कि बोलते हैं कि राइस और जो वीट जो ज़्यादातर हम लोग कंजम्पशन करते हैं इसी का ही. ही टेल्स दैट इन्हीं की वजह से ये नेगेटिव ग्रेन्स इनको बोलते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा जो आजकल इतना हम लोग देखते हैं लोगों को डिजीजेस हो रहा है, इट इज़ मेनली ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ दीज टू ग्रेन्स. ही सेज डॉक्टर वाली हम बताते हैं कि वो हैं कौन. इज एन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हु हैज़ अंडरटेकन सेवरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द फूड एंड हेल्थ सेक्टर. While rice, wheat and milk might be staple for some, he considers them the root cause of lifestyle disorders. इसी की वजह से सारी बीमारियां फैलती हैं वो बोल रहे हैं. The doc and desi, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना हम आजकल स्टाइल में. The doc and desi खादी, he does no black magic, कोई काला जादू नहीं करते वो, बल्कि वो क्या करते हैं, instead he advises changes in food choices. अपना फूड का चॉइस में चेंज लाओ एंड मिनिमल मेडिकेशन एट अ मिनिमल कॉस्ट देते हैं ये टू हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हु कम एट हिज डोर्स एंड ही एंड्स अप इन डिलीवरिंग अ मिरेकल. और जादू ही होता है इनके पास जो भी आ जाता है. ही क्लेम्स जादू कैसे, ब्लैक जादू नहीं होता है, बिकॉज द वे ही एडवाइसेस कि आप किस चीज़ को मत खाइए, किसको खाइए और लाइफ स्टाइल को किस तरह से मेंटेन करो, उसी से ही आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं. एंड देन ही क्लेम्स दैट रिजॉर्टिंग टू अ मिलेट डाइट इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट एंड क्योर diabetes, hypertension, obesity, constipation, skin diseases, etc. Just mentioning a few. Otherwise, there are many more. He says कि सब millets के consumption से ठीक हो जाती हैं. Based on the healing nature of millets, he classified millets into 3 categories, namely positive, negative, neutral. Now, barnyard millet, brown top millet, and the kodo millet, little millet, foxtail millet. इनको वो बोलते हैं पॉजिटिव मिलेट्स. पॉजिटिव मिलेट्स उनका मतलब होता है कि जिनको खाने से कि आपको फ़ायदे होंगे.
पैडी राइस एंड व्हीट हमने अभी देखा कि उन्होंने इनको नेगेटिव मिलेट्स बोला। फिर इन्होंने बोला कि जो पर्ल मिलेट, प्रोसो फिंगर, ग्रेट मिलेट्स एंड देसी कॉर्न, इनको उन्होंने न्यूट्रल मिलेट्स बोला। मतलब these millets neither do they harm the healing but there is no contribution to the healing process. इनका जो healing process है that is negligible. एंड ये बहुत अच्छा इन्होंने कोट किया, he believes that when the food is wrong medicine is of no use and when the food is right medicine is of no need. कितना अच्छा लिखा है ना, अगर हम गलत खाना खाते हैं तो मेडिसिन क्या काम करेगी, पर अगर हम खाना सही खा रहे हैं, हमारे फूड का चॉइस सही है, तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। सो टू सम अप, आप इसके बाद इसको एंड कर सकते हो अपने पैराग्राफ को कि लेट अस ब्रिंग मिलेट्स बैक टू आवर किचन, मेक देम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर स्टेपल डाइट प्लान एंड से गुड बाय टू इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू ऑल, क्योंकि मेरे को किसी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपके लिए वीडियो बनाई है, बिकॉज आई वॉज बीइंग आस्क्ड कि आजकल सारा सिंस इट इज़ अ मिलेट ईयर एंड हमारे पीएम जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने बहुत इस पे एफर्ट करा है और सबको मिलेट के लिए, ग्रेन्स को कंजम्पशन के लिए बोला गया है। सो आई थॉट कि एक पैराग्राफ जो कि मिलेट मैन ऑफ द ईयर पे आए, मिलेट्स के ऊपर आए, आपके हॉलीडे होमवर्क्स में, हॉलीडे होमवर्क्स पे नहीं भी है तो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज में दिस विल बी ऑफ हेल्प। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो विल हेल्पफुल, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। And if you have not subscribed to Chapter Hunt, please subscribe to the channel to explore many such more informative videos. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.